Good evening, students. Welcome back. Now, as we are on the numerical part of dual nature of light, in last lecture we have seen up to question number 10. Now we will start from question number 11. Question number 11, we have given wavelength of incident radiation is 4500 Armstrong unit. Work function is 2.0 electron volt, and because of magnetic field, the motion of the electron, the radius of the electron is in circular field, and radius of that is 20 centimeter. Question number 11. So we have lambda, we have phi 0, and we have radius. We have to convert this into SI unit. We have to find out the magnetic field. So we have to use two formulas. First is kinetic energy is equal to h into nu minus work function. Also we have to use the kinetic energy formula, u square v square r square upon 2m. This you will learn in the chapter electrostatic. The topic name is cyclotron. Cyclotron is a device which accelerate the particle, charged particle, and it is used to break the atoms. That we will see in detail when we see the electrostatic chapter. For the reference, we have to apply the formula kinetic energy is equal to q square v square r square upon 2m. Okay, for your reference I have written here cyclotron. This is only for your reference. Now we have to compare kinetic energy का formula क्या है, q square v square r square upon 2m. So I will write here q square v square r square upon 2m is equal to h into न्यू की जगह पे c अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन. गेटिंग इट, एच डी माइनस वर्क फंक्शन न्यू की जगह पे c अपॉन लेमडा, क्योंकि लेमडा गिवन है. एमस्ट्रॉन्ग यूनिट को कन्वर्ट करेंगे पहले तो q है चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 the whole square. b square, that is we have to find out b. r radius 20 centimeter, 20 into 10 raised to minus 2 square divided by mass 9.11 10 raised to minus 31 kg. h 6.63 into 10 raised to minus 34. c 3 into 10 raised to 8. lambda 4500 into 10 raised to minus 10 meter minus work function is 2.0 electron volt. I write here 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19. Clear? All the values I have substituted. 16 का square is 256, that is 2.56 into 10 raised to minus 38, 19 2s into b square into 20 का square 400 into 10 raised to minus 4 divided by multiply by 2 18.22 into 10 raised to minus 31. Here 19.89. 3 3s are 9, 6 3s are 18. Carry 1, 6 3s are 18 plus 1, 19.89 into minus 10 will go up. Minus 10 plus 8, 18. Minus 34 plus 18 will be how much? Or you can, what you can do, this is 4.5. See, I can write this 4.5. So this will be 10 raised to minus 7. If I write here 4.5, that will be 10 raised to minus 7. Getting it? So for your reference, I will write here 4.5 into 10 raised to minus 7. This minus 7 will go up. Minus 7 plus 8 will be 15. Plus 15 minus 34 is 10 raised to minus 19 divided by, यहाँ पे बचा है 4.5. Getting it? इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें 6 into 3.2 10 raised to, ये minus 19 दोनों कॉमन लाने के लिए अपन ने ऐसा किया. ठीक है, वो ऐड हो जाएगा सीधा सीधा. इसको मैंने ऐसे ही रखना. नाउ ये 10 के पावर को अपन ले लेते. ये 10 raised to 2 है, पॉजिटिव 2. ठीक है, अभी नेगेटिव को ऐड कर दे. माइनस 38 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 42. समझ रहा है? माइनस 42. और ये प्लस 2 है तो प्लस 2, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 31. तो ये कितना बचा? 33. और ये 42 कितना बचा? 33 और 42 मतलब बचा माइनस 9. सो आई विल राइट 10 का पावर माइनस 9. 2.56 इंटू ये मैंने ले लिया है 4
डिवाइडेड बाय 18.22 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी दोनों को डिवाइड करके 18.19.89 4.5 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर दो। अभी कैलकुलेशन का काफ़ी सारा पार्ट है, इसमें ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं और आगे सॉल्व करके देता हूँ आपको। कैलकुलेशन का काफ़ी सारा पार्ट है, ध्यान से करना, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 सा ये हो जाएगा 24 कैरी 2, 5 4 सा 20, 22 वापस कैरी 2, 4 2 सा 8, 9 10 डिवाइडेड बाय 18.22 इंटू 10⁻⁻⁹। यहाँ से 10⁻⁻⁹ यहाँ से कट कर दो तो बचेगा यहाँ पे -10। ठीक है, ये निकल गया इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे जो बचेगा उसको डिवाइड करके, उसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे बचा हुआ है बी स्क्वायर, उसको डिवाइड करके जो नंबर आएगा यहाँ पे -3.2 इंटू 10⁻⁻⁰। समझ में आया? आपको इसको डिवाइड कर देना है, वो दो नंबरों को, ये दो नंबरों को डिवाइड करना है लॉग टेबल से, फिर एक नंबर आएगा यहाँ पे, उसको 3.2 से माइनस कर दो तो इंटू 10⁻⁻⁰ मिलेगा। अभी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके एक आंसर यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 18.22 डिवाइड बाय 10.24 इंटू 10⁻⁻⁰। ये बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो दिस विल बी इंटू 18.22 10.24 इंटू 10⁻⁻⁰ का पावर हाफ। ठीक है, इसको लॉग से लेके 10⁻⁻⁰ है, इसको लिखो 10⁻⁻⁵, और ये सबको लॉग टेबल से पावर हाफ लेके लॉग टेबल से सॉल्व कर लो। बी का आंसर आएगा, यूनिट विल बी टेस्ला। क्लियर? काफ़ी सारा कैलकुलेशन है। अब ये सम ऐसे ही है, ये 4 मार्क के लिए सम आने का फुल चांस है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव गिवन द टेबल, observations are given. This is the first observation, second observation, incident wavelength in Armstrong unit is given, stopping potential in volt is given. So this is in Armstrong, we have to convert it into meter. So I have converted this into meter by multiplying it into 10⁻⁻⁰. I have shifted the point, that is 2.536 into 10⁻⁻⁷ meter. Similarly this is 3.650 into 10⁻⁻⁷ meter. This is in volt, so no need to change. What we have to find out is Planck's constant, work function, threshold frequency and corresponding wavelength. This we have to find out. Quite big sum. Okay. Now at stopping potential, we know that this is equals to EVS equals to kinetic energy. Now kinetic energy is equal to H into nu minus work function. This is wavelength, so we have to convert this into C by lambda. Now this is negative sign. If this goes this side, it will be positive. I convert nu into C by lambda, and we have two observations, so we will be having two equations. So first equation is H into C by lambda 1, H into C by lambda 1, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस EVS1 प्लस वर्क फंक्शन, दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरीके से मिलेगा, H into C by lambda 2, EVS2 प्लस वर्क फंक्शन, इक्वेशन नंबर 2। Now these are two simultaneously we can solve, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया कट, ये दोनों के बीच में माइनस का साइन है, ये दोनों के बीच में माइनस का साइन है। अभी ध्यान से समझना, इसका कैलकुलेशन में करके रखा क्योंकि बहुत बड़ा सम होता था, अदरवाइज मैं आपको समझाने बैठता। आपको समझना है, कैलकुलेशन खुद से करना है। दोनों में से H इंटू सी बाहर निकाला, 1/λ1 माइनस 1/λ2, दोनों में से E कॉमन निकाला, VS1 माइनस VS2। H वी हैव टू फाइंड आउट, पहला C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸, 1/λ1 2.536 इंटू 10⁻⁻⁷ माइनस 1/λ2 3.650 into 10⁻⁻⁷ is equal to E 1.6 into 10⁻⁻⁹, VS1 1.95, VS2 0.5। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये देखो -7 ऊपर जाएगा +7, ये -7 ऊपर जाएगा +7,
दोनों का 10⁻+7 को बाहर निकाला कॉमन, ऑलरेडी 8 है, 8 और ये 7 कॉमन निकाला, 8 और 7 हो गया 15, तो 3 इंटू 10⁻15 इंटू एच, इसका रेसिप्रोकल 0.39, इसका रेसिप्रोकल 0.27, ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करोगे तो 1.45, 1.95 माइनस 0.5 इज 1.45 इंटू 1.6, ये आएगा 2.32 इंटू 10⁻19, ये दोनों का डिफरेंस इज 0.12 इंटू 3 इंटू 10⁻15 इंटू एच इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.36 नीचे चला जाएगा डिवाइड, ये -19 है, +15 ऊपर जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 -19 इज -34, ये दोनों को लॉग से सॉल्व करोगे तो एच का वैल्यू मिल जाएगा आपको 6.44 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. So we have got the value of H as 6.44 into 10⁻34 joule second. Now we have to find out the work function. We have two equation. You can substitute H का value in any of the equation. I have substituted value of H in substitute in equation 1, which is equation 1, H into C by lambda 1 equals to EVS1 plus work function. H we have got 6.44 into 10⁻34, C standard value 3 into 10⁻8, lambda 1 2.536 into 10⁻7 equals to E 1.6 into 10⁻19, VS1 1.95, work function we have to find out. Getting it? Easy है. इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, so this will be 19.32 डिवाइड बाई 2.536, -7 ऊपर जाएगा +7, 7 + 8 हो गया 15, -34 + 15 इज -19 डिवाइड बाई, ये तो है ही 1.6 इंटू 1.95 को मल्टीप्लाई करोगे 3.12 प्लस वर्क फंक्शन. नाउ ये डिवीजन जो है आपको लॉग टेबल से करना है. अभी के लिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया. ये डिवीजन लॉग टेबल से करने के बाद 7.62 इंटू 10⁻19, ये प्लस है, ये बात जो आएगा माइनस हो जाएगा 3.12 इंटू 10⁻19, ये आ गया वर्क फंक्शन. 10⁻19 कॉमन ही है, 7.62 माइनस 3.12 यू विल गेट 4.5 वोल्ट, 50 मिल गया, वर्क फंक्शन मिल गया 4.5 वोल्ट. उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ये दोनों कट हो गए. इसको फिर से लॉग टेबल से करना है और आंसर आएगा 2.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आ गया 2.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो फॉर्मूला फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज H इंटू न्यू जीरो. 50 अपन ने निकाला है कितना, 4.5 इंटू 10⁻19 वोल्ट. H का वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाला है 6.44 इंटू 10⁻44 माइनस 6.44 इंटू 10⁻34 फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो. ओके, इसको इधर नीचे डिवाइड कर दो 6.44 को, -34 ऊपर जाएगा +34, -19 +34 हो गया 10⁻15, ये दोनों को डिवाइड करोगे लॉग टेबल से तो आपको आंसर आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज में. हो गया. अभी क्या बचा, सिर्फ बचा इसका वेवलेंथ. तो अपने को वेवलेंथ निकालने का भी सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला, न्यू जीरो इज इक्वल टू C बाय लैम्डा जीरो. न्यू जीरो का वैल्यू है आपके पास, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, तो लैम्डा जीरो को इधर डालो, इसको नीचे डाल दो, गेट द आंसर. समझा? 2 सम आज सॉल्व किए, दोनों बड़े सम है. आगे का बाकी के जो सम्स हैं वो सम्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाता हूँ. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.